सो लास्ट वीडियो में हमने एडी के कंपोनेंट्स पढ़े थे, 2 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर ओपन इकोनॉमी में, 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में. सो नाउ वी विल रीड एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल. AD is equal to C plus I, which means, so since the determination of income and employment is to be studied in the context of 2 sector economy, which is household and farm, the third and fourth component of aggregate demand, which we have already read, are not discussed in detail, even though AD has 4 components, as we all know because we have read that. But we will assume that AD is a function of only consumption expenditure and investment expenditure, which means कि we will read AD only in 2 sector model. So सबसे पहले देखेंगे behavior of aggregate demand. So now let's see its behavior. Behavior का मतलब होता है AD का schedule देखेंगे. AD का schedule हमको शो करता है कि how AD is responding to different level of income. Income is denoted by Y. Alphabet जो Y है वो denote करता है income को. So AD depends upon the level of income. जो aggregate demand है, of course ही बात है, level of income पर depend वो होगी. Goods and services खरीदने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए. वो पैसा कहाँ से आएगा? जैसी आपकी इनकम है वैसा ही तो आप खर्च कर पाओगे ना, वैसे ही डिमांड होगी. So generally there exists a positive relationship between income, which is Y, and the level of aggregate expenditure in the economy. Aggregate expenditure का मतलब क्या है? Aggregate demand. So as the level of income rises, AD also rises and vice versa. So the first component of AD, जो सबसे पहला component है AD का, वो होता है consumption expenditure, which rises with increase in income. And the second component of AD is investment. So here we are assuming that the economy has only autonomous investment. It means that the change in income brings no change on investment. तो हमने यहाँ पर दो चीजें assume करी है. सबसे पहला तो ये कि हम AD को फंक्शन मान रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, और दूसरा हमने क्या assume किया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है. तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हमको लेवल ऑफ इनकम का कॉलम दिख रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कॉलम भी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का भी है, और एग्रीगेट डिमांड भी है. एज वी नो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, विच इज C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M. हमने क्योंकि यहाँ पे अज्यूम क्या किया हुआ है कि एग्रीगेट डिमांड सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को ही इंक्लूड करेगा, विच मीन्स कि जो 2 और हैं वो 0 हो जाएंगे. यहाँ पर हमने इस टेबल को ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है, ऐसा ही हमको शो हो रहा है. AD और जो C हैं वो दोनों ही पैरेलल हैं, so they will not meet because the difference between the AD and C is I, which is constant. तो देखो अगर C plus I में से आप I को लेस कर दोगे तो सिर्फ CC बच जाएगा. so AD C plus I होता है. तो फर्स्ट तो ये है बिहेवियर उसका. अब देखो सेकेंड चीज देखो, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0. जब हमारी लेवल ऑफ इनकम 0 है तब भी जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 50 है. So इसका मतलब क्या है? There is always some minimum level of consumption even when the income is 0. So just see in diagram as well. So this is called autonomous consumption and it is denoted by C और उसके ऊपर बार होता है which is independent of income. So autonomous consumption refers to minimum level of consumption which is needed for survival. That is consumption at 0 level of income. मतलब कि जब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल 0 है, तब भी हम consumption expenditure करते हैं, तब भी हम पैसा खर्च करते हैं कंजम्पशन पर. So such consumption is either met from past saving or through sale of asset या फिर borrowing. So जो starting point होगा consumption curve का is above the origin, not from origin. Always remember that point. Origin से start होने का क्या मतलब है कि 0 लेवल पर 0 consumption है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए आप कुछ तो खाओगे ही ना, इवन अगर आपकी इनकम कुछ नहीं भी है तो भी. थर्ड देखो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व. सो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस इट इज आल्सो राइजेस. तो जैसा कि हमने बताया था, सो जनरली पॉजिटिव रिलेशन ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग है. अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच. अब देखो इन्वेस्टमेंट कर्व की स्लोप. इन्वेस्टमेंट कर्व कौन सा है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है. सो इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. Why it is parallel? Because we have assumed that it is independent of the level of income. इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इनकम कितनी भी हो लेकिन ये तो फिक्स ही रहेगा, एक फिक्स नंबर ही रहेगा, एक कांस्टेंट नंबर ही रहेगा. सो AD कर्व जो है वो हमेशा अबव द ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और कंजम्पशन, जो कंजम्पशन का कर्व जा रहा है, अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो कर्व जा रहा है हमेशा उसके ऊपर से ही स्टार्ट होगा, बिकॉज हमको पता है कि इट इंक्लूड्स I एज वेल. नाउ लेट्स सी द स्लोप ऑफ AD कर्व. सो AD कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप which indicates that as income increases,
AD also increases, that is aggregate expenditure also increases. तो फर्स्ट वीडियो में AD की डेफिनेशन पढ़ ली, AD के कंपोनेंट्स भी पढ़े और अब हमने AD का बिहेवियर भी पढ़ लिया। अब आता है एग्रीगेट सप्लाई। बट एग्रीगेट सप्लाई पढ़ने के लिए हमको सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम माइक्रो में जाएंगे और सप्लाई पढ़ेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर वापस आकर के एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे।